Praise the Lord. Praise the Lord. We are so happy to bring you God's word today. और हम बहुत ही खुश हैं आज परमेश्वर के वचन को आप तक लाने As के we लिए। know that we all are still in lockdown, जैसे हम सब जानते हैं अब भी हम लॉकडाउन में but फंसे we हुए are हैं, glad that we can come together to study God's word. लेकिन हम खुश हैं कि हम एक साथ आके परमेश्वर के वचन को पढ़ पा रहे हैं, We want सीख to पा रहे हैं। read from Exodus chapter 15, और आज हम निर्गमन के पुस्तक से 15वां अध्याय से पढ़ना and चाहते we हैं want to read verse number 22. और हम 22वें वचन से पढ़ेंगे। It says like वो this. इस तरीके से कहता है, So Moses brought Israel from the Red Sea. Then they went out into the wilderness of Shur, and they went 3 days in the wilderness and found no water. और 22वें वचन में ऐसा लिखा गया, तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम के जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। Verse number 23 says, और 23वां वचन ऐसा Now कहता when they है, came to Mara, they could not drink the waters of Mara, for they were bitter. Therefore the name of it was called Mara. फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। Verse number 24. और 24वां वचन, And the people complained against Moses, saying, What shall we drink? तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए। Now we know the background of this passage. और हम इस कहानी के पहले के भाग को हम This जानते is हैं। soon after the people of Israel crossing the Red Sea. और ये जब इजरायली जब लाल समुद्र को पार करके आते तब की बात है। And we know that they were slaves in the land of Egypt. और हम जानते हैं कि ऐगुप्त देश में, मिस्र देश में वो जो है एक बंदी के रूप So में थे। God chose Moses to go and deliver the people of Israel from the hand of और Pharaoh. परमेश्वर ने मूसा को चुना ताकि वो मिस्र देश में जाके इजरायलियों को उसके हाथों से छुड़ा के So लेके God said to Moses like this, आए। और परमेश्वर ने मूसा से इस तरीके से कहा, I have heard the cry of my people. मैंने मेरे लोगों की पुकार को सुनी है I have seen the affliction of my और people. मैंने देखी उनकी परिस्थितियों को मैंने देखी I know their pain, their sorrows. और मैं उनके तकलीफों को जानता हूँ। So God said to और Moses, परमेश्वर ने मूसा से I कहा, want you to go and deliver my people from the hand of Pharaoh. और मैं चाहता हूँ कि तू जाके मेरे लोगों को फरो राजा के हाथ से छुड़ाए। Even though it was difficult for Moses to say yes to God in the beginning, और मूसा के लिए बहुत ही कठिन था परमेश्वर को हाँ कहने के लिए, but Moses said yes to God, and then God used Moses to go to Pharaoh and do miracles, and then even the people of Israel started believing Moses. और आखिर में मूसा ने हाँ कहा। उसके बाद परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मूसा को इस्तेमाल किया, कई सारे अद्भुत काम उसके द्वारा करवाए। फिर इजरायली भी मूसा पे विश्वास करने लगे। God used to communicate with Moses, और परमेश्वर जो है मूसा के साथ बातचीत करता and था Moses lead the people of Israel. और मूसा इजरायलियों की अगुवाई करता था। Now then God said, Moses, this is a time for the people of Israel to get out of the land. और परमेश्वर ने मूसा से कहा, ये समय है, इस समय इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकलना And है। God made everything possible, और परमेश्वर ने हर एक चीज को मुमकिन and किया they left the land of Egypt, और उस मिस्र देश को छोड़ के बाहर निकल and they गए। were ready to move out, और वो जब बाहर निकलने वाले and थे they were out, और जब वो बाहर निकल and गए as they were going, और जब वो रास्ते में थे जा the रहे थे, Pharaoh and the people of Pharaoh, they were following the people of Israel. फरो और उसकी सेना इजरायलियों का पीछा करने लगी। Now when these people got so scared of looking behind, they saw Pharaoh is coming behind them. जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि फरो उनके पीछे आ रहा है, बहुत ही डर गए थे। And when they were looking in the front, they saw the Red Sea right in front of them. जब उन्होंने अपने सामने देखा तो उनके सामने लाल समुद्र They were था not knowing what to do about it. और वो नहीं जानते थे कि उन्हें क्या करना है। But when Moses asked God, लेकिन जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा, God said to Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, stretch out your hand. You have a rod in your hand. Stretch out the hand towards the जो sea. लाठी तेरे हाथ में उससे आगे बढ़ा, समुद्र की ओर बढ़ा। When Moses did that, जब मूसा ने वो किया, Bible says the Red Sea became two parts. और बाइबल में लिखा गया है कि लाल समुद्र दो भाग में And बट the गया। people of Israel, they walked through the dry land. और जो इजराइल के जो लोग थे उस समुद्र के बीच में सूखे जमीन पे से चल के Now गए। look at even the people of Pharaoh and his army, they also started following. They were actually following the people of Israel. जब हम देखते हैं कि फरो और उसकी सेना उनका पीछा करते वहां पे भी आ गए। So these people of Israel, they crossed to the other side. और जब ये इजरायली लोग समुद्र के उस पार पहुंच गए And Pharaoh and his army, they were right in the middle of the और sea. फरो और उसकी सेना समुद्र के बीचों बीच थे। In the dry road, they were actually passing, going to catch this guy. और जो सूखे मार्ग पे वो चल रहे थे, जो इन लोगों को पकड़ने के लिए जा रहे
Moses and the people of Israel, they reached the other side. और मूसा और इस्राएली के जो लोग थे वो समुद्र के उस पार पहुंच गए थे। Then the Lord spoke to Moses, परमेश्वर ने मूसा से बात किया stretch out your hand over the sea, that the waters may come back upon the Egyptian. और परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर चढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पे फिर बहने लगे। Bible says Moses did as God said, और बाइबल में लिखा गया कि जैसे परमेश्वर ने कहा उसी And- तरीके से मूसा ने and किया। Pharaoh and all his army, they died in the Red Sea. और फरो और उसकी पूरी सेना उस लाल समुद्र में डूब मरी। God has promised the people of Israel और परमेश्वर ने इस्राएलियों को वादा किया था, that you will not see these Egyptians anymore in your life. परमेश्वर ने उनसे कहा था कि इन मिस्र देशियों के मिस्रवासियों को God तुम कभी knew अपने जीवन how- में नहीं देखोगे। God knew how to fight for his people. और परमेश्वर जानता था कि उसे अपने लोगों के लिए कैसे लड़ना है। God used his servant Moses. और परमेश्वर ने अपने दास मूसा को Now इस्तेमाल किया। when Moses and the people of Israel, when they saw Pharaoh and his armies died right in front of them, और जब इस्राएलियों ने देखा कि उनके आंखों के सामने फरो और उसकी सेना कैसे डूब they मरी were so joyful. और वो बहुत ही आनंद मना रहे थे। Exodus chapter 15 talks about Moses singing and also Miriam also singing. और बाइबल में लिखा गया है उसी 15वें अध्याय की शुरुआत में किस तरीके से मूसा और मिरियम परमेश्वर के लिए गीत गा रहे थे। They were praising God because they have seen in a miraculous way how God has saved the people of और Israel. परमेश्वर की आराधना करते क्योंकि कैसे अचंभित तरीके से चमत्कारी तरीके से परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देशियों से बचाया था। After that day, और उसके बाद when we come to this incident, what we read this today, और जिन वचनों को अभी हमने पढ़ा उस कहानी के पास जब हम आते when हैं they reached the wilderness of Shur, और जब उस शूर नामक जंगल में पहुंचते हैं 3 days there was no water. 3 दिन तक वहां पे कोई पानी नहीं था। Actually, when they crossed the Red Sea, they have literally seen the waters are like become walls around them, and they were walking through it. और जब वो लाल समुद्र को पार करते तभी उन्होंने देखा था कि समुद्र का पानी दोनों तरफ दीवार बन के खड़ा था। But 3 days they have not seen water now. लेकिन 3 दिन तक अभी उन्होंने पानी नहीं But देखा। they reached a place called Mara. They found water, but that water was not good to drink because the water was bitter. और बाइबल में लिखा गया जब वो लोग 3 दिन के बाद मारा नामक एक जगह पे पहुंचे वहां पे उनको पानी मिला लेकिन वो पानी अच्छा नहीं था, वो कड़वा था, खारा था। After 3 days, when they see water, they get excited about और it. 3 दिन के बाद जब उन्होंने पानी देखा बहुत ही खुश हुए They were like, we did not drink water for 3 days, now we can drink. और उन्होंने कहा कि 3 दिन तक हमने पानी नहीं पिया अभी हम पानी पी सकते हैं। They had a lot of hope. वो एक आशा उनमें उत्पन्न But हुई। when they drank the water, जब उन्होंने उस पानी को पिया it was bitter. वो कड़वा था। Sometimes in our lives, कई बार हमारे we जीवन also में get excited about things that is happening. We think what we see in front of us is good. जो हमारे सामने चीजों को होते हुए देखते तो हम खुश होते हैं लेकिन हमको हमें लगता है कि अच्छा है। When we come very close to that, when we taste it, we come to know this is not good for us. लेकिन जब हम उसके नजदीक करीब आते हैं उसको चख के देखते तो हमें लगता है कि नहीं हमारे लिए Then we अच्छा get नहीं है। upset, we get disappointed about और it. हम उससे देख के निराश हो जाते हैं। These people of Israel, they were very much disappointed. They were upset about the water because the water was bitter. और जब उन्होंने उस पानी को पिया तो बहुत ही निराश हो गए जब क्योंकि वो पानी कड़वा था। Look at these people, they have seen the miraculous way how God has helped them from the hand of Pharaoh. और इन्होंने देखा था किस तरीके से परमेश्वर ने फरो राजा के हाथ से इन्हें छुड़ा के लाया They था। have seen how God killed Pharaoh and his army in front of them. और उन्होंने देखा तो उनके आंखों के सामने परमेश्वर ने किस तरीके से फरो और उसकी सेना को डुबा के मार दिया Bible था। says when they saw that, they feared God, they believed God. बाइबल में लिखा गया है कि जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने परमेश्वर का भय माना They और wo- उस पर विश्वास किया They were also praising God and singing songs to God. और वो परमेश्वर की आराधना करे तो उसके लिए गीत गा रहे थे। But when they came to a small situation like this, they forgot everything. लेकिन जब ऐसे एक छोटी सी परिस्थिति कठिनाइयों के समय पे आए तो सब कुछ भूल गए। There were people who praising few minutes back. और थोड़े ही समय पहले वो परमेश्वर की आराधना करने वाले Few थे। days back, they were praising God. थोड़े दिन पहले वो परमेश्वर की आराधना कर But रहे now थे। the water is tasting bitter, they started complaining. और जब ये पानी कड़वा लगने लगा तो परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। Bible says the people started complaining. और बाइबल में लिखा गया कि परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत करने They लगे। complained against Moses. और मूसा के विरुद्ध शिकायत They करने asked a लगे। question, what shall we drink?
और उन्होंने मूसा से सवाल किया कि हम क्या पिए। Many times we are like this. कई बार हम ऐसे हैं, When the situation goes wrong, जब हमारे साथ परिस्थितियां गलत होती है when we get discouraged because of the situation that is happening around, और जो कुछ परिस्थितियां हमारे आजू बाजू होती है उसे लेकर हम जब निराश होते हैं we become like the people of Israel started complaining. और हम इजरायलियों के जैसे बनते और हम शिकायत करने लगते Then we will ask questions in desperation. We ask, what we go about it now? और हम ऐसे तत्परता से हम ऐसे सवाल करते हैं कि हमें अभी क्या करना है How we will handle the और situations हम इस now? परिस्थितियों को कैसे संभालेंगे। But when they complain like that, लेकिन जब उन्होंने इस तरीके से कहा Bible says in verse number 25, और 25वें वचन में ऐसा लिखा गया when है they complained about Moses, और जब उन्होंने मूसा के विरुद्ध शिकायत की Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree. और तब मूसा ने यहोवा को दोहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया When he cast it into the waters were made sweet. और जिससे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। When they started complaining about Moses, और जब वो मूसा के विरुद्ध शिकायत करने लगे, Bible says Moses cried out to the Lord, बाइबल में लिखा गया कि मूसा ने यहोवा की दोहाई and the दी Lord showed him a tree. और परमेश्वर ने उसे एक पौधा When he दिखाया। cast it into the waters, जब उसने उस पौधे को पानी में डाला the waters were made sweet. तो वो पानी मीठा हो गया। I want to tell you something today. मैं तुमसे कुछ आज कहना चाहता The हूँ people, they were complaining against Moses, और वो मूसा के विरुद्ध शिकायत कर रहे थे and they could not find, or God did not show them the answer. और परमेश्वर ने या उन्हें अपने आप को कोई जवाब नहीं मिला। Yes, few days back, maybe few minutes back, there were people of praising God. शायद थोड़े समय पहले, थोड़े दिन पहले परमेश्वर की आराधना कर रहे But in this small situation they are right now, they started murmuring against God and God's servant. लेकिन जो छोटी समस्याओं में वो फंसे तो इसके विरुद्ध परमेश्वर के और परमेश्वर के दास के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। But what Moses did, लेकिन जो मूसा ने किया he asked the Lord what to do about this situation. और उसने परमेश्वर से पूछा कि इस परिस्थितियों में मैं क्या करूं। Bible says God showed him a tree. और बाइबल में लिखा गया कि परमेश्वर ने उसे एक पौधा दिखाया। I want to say it this way. मैं तुमसे इस तरीके से कहना Maybe चाहता those हूं, people who were complaining against Moses, और जो लोग मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे थे, maybe they were complaining maybe about that water they have there. शायद जो पानी उसके सामने था उसके विरुद्ध वो शिकायत They कर might रहे have थे। come and sit under this tree. शायद इसी पौधे के नीचे वो आके बैठे होंगे। Maybe sitting under the tree, they may be having a meeting there and complaining, maybe planning something against the man of God. शायद इसी पौधे के नीचे बैठ के वो बातचीत कर रहे होंगे और ये परमेश्वर के दास के विरुद्ध कुछ योजना बना रहे But they होंगे। never knew this is going to be their solution. लेकिन वो कभी नहीं जानते थे यही पौधा उनके समस्याओं का हल है। But when Moses asked the Lord, लेकिन जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा, God showed him this is the solution for this situation. परमेश्वर ने बताया कि समस्याओं का हल ये पौधा है The tree was right there. और वो पौधा वहीं पे था। Even when they were complaining, the tree was there. और जब वो शिकायत कर रहे थे उस समय पे भी वो पौधा वहीं Maybe पे they था। might have seen the tree even when they were complaining. जब वो शिकायत करते शायद उस समय उन्होंने पौधे को देखा भी होगा, But they could not realize or understand from the Lord that is the solution for the problem that they are facing. शायद उसे समझ नहीं पाए कि यही एक हल है जो उनका जो समस्याओं का सामना कर रहे But हैं। when Moses heard of the Lord, लेकिन जब मूसा ने परमेश्वर को सुना, when Moses cut the branch of the tree and put it in the water became sweet. लेकिन जब मूसा ने उस पौधे को काट के उस पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। What difference that we see from these two kinds of people? इस दो लोगों में हमें क्या अलग दिखाई देता है? The people of Israel, they were complaining people. और जो इजरायली लोग थे वो शिकायत They have seen how miraculously God has helped them, और उन्होंने देखा था कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उनकी मदद की थी, but they forgot everything in a moment. लेकिन एक ही क्षण में वो सब कुछ भूल गए। They were singing songs, वो परमेश्वर के लिए गीत गा रहे but थे, in the real situation they forgot. लेकिन ऐसे कठिनाइयों में वो सब भूल गए। We should not be like these people. और हमें इन लोगों के जैसे नहीं बनना We should है। not forget the things what the Lord has done for us. और जो कुछ चीजों ने परमेश्वर हमारे लिए किया है हमें उसे भूलना We नहीं। should not be this kind of people who are complaining against God. और हमें ऐसे लोग नहीं बनने जो हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते We रहते should not be like these people who are complaining against God's servants. और जो परमेश्वर के दास के विरुद्ध शिकायत करते थे ऐसे लोग हमें नहीं बनना। But rather we should ask God in every situation, why God this is happening?
how you are going to solve this लेकिन situation. हमें परमेश्वर की दुहाई देने, उससे पूछने कि परमेश्वर इन समस्याओं का सामना मैं कैसे करूं, क्या करूं। When Moses asked, जब मूसा ने पूछा, God showed him the answer. परमेश्वर ने उसका जवाब दिखाया। He was a man of praising God. और वो एक व्यक्ति था जो परमेश्वर की हमेशा आराधना करता Even था। though he was leading these people, he was with these people, और ये लोगों की अगुवाई कर रहा था, उनके साथ वो बना था, but he never wanted to be like those people. He wanted to be a man of God who praised God in every situation. लोगों के साथ रहते हुए कभी उसने अपने आप को उनके जैसा बनाना नहीं चाहा, लेकिन उसने अपने आप को उनसे अलग रखा और हमेशा परमेश्वर का दास बना रहने के लिए उसने सोचा। It is up to us. ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। God has already shown solution for our problems. परमेश्वर ने हर एक हमारे समस्याओं का हल हमें दिखाया है। Most of the time, कई बार we sit maybe with the solution or under the solution or around the solution. We sit and still we become a people like this guy complaining about everything that we कई have बार in our हमारे life. साथ भी ऐसा ही होता है जैसे इन लोगों के साथ हुआ। हम अपने हल को हमारे साथ शायद उसके ऊपर है, उसके आजू बाजू हम रहते हैं, लेकिन हम नहीं जानते यही हमारे समस्याओं का हल है। Yes, God also heard these people were complaining, और परमेश्वर ने भी सुना कि ये लोग शिकायत कर रहे थे, but He did not answer them. लेकिन उनको उसने जवाब नहीं दिया। But God answered a man who were praising, who were praying, who was asking God. लेकिन परमेश्वर ने उसको ही जवाब दिया जो जवाब मांग रहा था और उसकी आराधना कर If you रहा are था। questioning God, complaining against God's people, you may not get your answer, you may not get your solutions. अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के दास के विरुद्ध सवाल करते हो, शिकायत करते हो, हर समय कुड़कुड़ाते रहते हो, तो शायद आपको आपका जवाब नहीं मिलेगा। Yes, God can hear what you are saying, हाँ, परमेश्वर सुनेगा जो कुछ आप कह रहे हो, but it doesn't mean that you get your answers. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपका But जवाब let us मिलेगा। be like Moses, who took the problem in prayer to God. और हम मूसा के जैसा बनेंगे जिसने उस समस्याओं को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने ले And गया। God answered him. परमेश्वर ने उसको जवाब दिया। Then God said, और परमेश्वर ने उससे कहा, if you diligently heed the voice of the Lord your God, और यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने and do what is right in his sight, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। सुनना है, you have to hear the voice of the Lord. तुम्हें परमेश्वर के वचनों को सुनना है। You have to do the right things in the sight of God. जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है उसी को तुम्हें Then करना है। God will not bring any disease that he brought to the people of Egypt. तब जो कोई रोगों को, जो कोई बीमारियों को परमेश्वर ने मिस्र देश में लाया था वो कभी तुम्हारे ऊपर नहीं लाएगा। Today we want to tell you this. और हम आपसे आज ये कहना चाहते हैं, God is expecting us to hear his voice. और परमेश्वर चाहता है, अपेक्षा करता है कि हम उसकी आवाज को सुने। He wants us to do right things in his sight. वो चाहता है कि जो उसकी दृष्टि में सही है, उसकी नजरों में सही है, उन्हीं चीजों को He हम करें। wants us to obey all his commandments. और वो चाहता है कि हम उसकी हर एक आज्ञाओं को माने। God is so much in love with us. और परमेश्वर हमसे बहुत ही प्यार करता है। He forgives us every time. वो हर समय हमें माफ करता है। That's the reason why we all are still alive. उसी कारण से आज हम सब जीवित हैं। But we should not become like the people who are murmuring against God. लेकिन हमें उन लोगों के जैसे नहीं बनना है जो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं। Every time we fail और जब कभी हम नाकाम and होते we हैं, forget, when we are in a trouble, we forget and we start complaining. और जब कभी हम समस्याओं में होते हैं, हम भूल जाते हैं और हम शिकायत करने लगते But हैं। I think we got to change. लेकिन मुझे लगता है कि We हमें got to बदलना change है our attitude. और हमें अपने बर्ताव को बदलना है। We got to become like this man of God, Moses, who are praying and asking और God. हमें इस परमेश्वर के दास मूसा के जैसे बनना है जो प्रार्थना करके परमेश्वर से मांग रहा था, Even in पूछ this रहा था। situation that we all are in, और आज जो परिस्थितियों में हम सब हैं, why don't we seek God क्यों हम परमेश्वर को नहीं खोजते? rather than complaining? और शिकायत करने के बजाय हम क्यों परमेश्वर को नहीं खोजते? As we told you, जैसे हमने आपको बताया, complaining people will never get an answer from God. और जो शिकायत करने वाले लोग हैं उनको परमेश्वर से कभी कोई But जवाब नहीं people who मिलेगा। praise, people who pray to God, they would get an answer from जो God. परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर से जवाब मिलेगा।
We encourage all of you today, और हम आप सबको उत्साहित करते हैं as we are in a situation like this, जैसे हम इन परिस्थितियों में फंसे हैं rather than sitting and complaining about it, और बैठ के परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत करने से let अच्छा us है be like people of praising God and praying to God. और हम उन लोगों के जैसे बनेंगे परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे That is what Moses did, और उसी चीज को मूसा ने किया and God gave him an answer. और परमेश्वर ने उसे जवाब दिया Sometimes your tree is right there, कई बार आपका पौधा वहीं पे है your solution, your answer is right there. आपका हल आपका जवाब वहीं पे है It may be right in your house, शायद वो आपके घर में ही it may है be right in your job, शायद वो आपके काम के it जगह may पे be है right in your business, शायद वो आपके व्यवसाय में है but why you don't find it? क्यों आप उसको ढूंढ नहीं पाते हो Because your attitude is an attitude of complaining about everything. क्योंकि जो आपका बर्ताव है वो जो शिकायत करने वालों As जैसा you है। hear this message, जैसे आप इन वचनों को let सुनते हो your attitude change. और आपका बर्ताव जो है बदले You become a man, a woman of praising God. और आप एक स्त्री या पुरुष ऐसे बने जो परमेश्वर की आराधना करते हैं और उससे प्रार्थना Let करते us हैं all together praise God and pray and asking God in this situation what God you want us to do. और हम एक साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आराधना करेंगे और पूछेंगे परमेश्वर आप क्या चाहते हो कि हम करें Then He will tell us what is His plan और for वो our life. हमें बताएगा कि हमारे जीवन के लिए उसकी योजना क्या है Let's pray together. और हम एक साथ मिलकर Father, प्रार्थना we want to करेंगे thank you for this beautiful day. पिता हम आपको धन्यवाद कहते हैं आज के सुंदर दिन के Thank लिए। you for giving us this wonderful time to study your word. इस मौके के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा हम आपके वचनों को पढ़ सकें Lord, we want to thank you for teaching us that we should not complain against you and your servants. धन्यवाद परमेश्वर हमें सिखाने के लिए कि हमें आपके और आपके दास के विरुद्ध कोई शिकायत या कुड़कुड़ाना नहीं है Lord, we want to praise you and we want to always pray and ask what we go to do in our situations, और हम God. हमेशा आपकी स्तुति करना चाहते हैं और हम आपसे मार्गदर्शन को लेना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या Bless करना है। all the people who are listening to us जो today. कोई इन वचनों को सुन रहे हैं उसे आप उन्हें आप आशीषित कीजिए परमेश्वर Take care of them, Father God. हर एक का ख्याल रखिए परमेश्वर Thank you, Lord, that you will change the bitter situation into a sweet situation, Father हम God. आपको धन्यवाद कहते हैं कि उनके जीवन के हर एक कड़वापन को आप मीठा में बदल दोगे Because they will be begin to praising you alone. और उसके द्वारा वो आपकी स्तुति करने की शुरुआत कर सकते Thank you for listening to our praise. हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते Amen. हैं आमीन। Thank you and God bless you. धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीषित करे।